Hey guys, welcome to the channel Calibrate Physics. On this channel, you all can attempt a lot of questions, and for the ease of solving, I have divided the questions in different categories based on their difficulty levels. The first one is the beginners level question set, where you can learn simple applications of concepts. Then you can move on to the expert level question sets, where you can learn applications of concepts in tricky situations. And finally, you can move on to the champions level question sets. These are highly complex questions, and to attempt them, you need a thorough understanding of that particular topic. Also, during the later part of this video, all the questions will appear on the screen one by one, and to attempt any particular question, you can pause the video, solve that particular question, and then again play the video to move on to the next question. You can repeat this process for all the other questions as well. Later, you can also look at the answer key as well as the solutions to get a detailed understanding on how to attempt different types of questions in different situations. So guys, start practicing a lot of questions on this channel, and gradually you will definitely see a lot of improvement in the understanding of any particular topic. You can also subscribe to the channel and click on the bell icon to get regular updates. So guys, go for it and wish you all best of luck. In this video, you all can practice 3 champions level questions from elasticity. Here are the questions. Verify your answers from the answer key. Okay, so let us have a look at the solutions now. Question number 1. A thin uniform rod of mass m and length l is free to rotate in a vertical plane about the horizontal axis passing through one of its ends. रॉड को यहाँ पे फिक्स किया हुआ है और इस एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर सकता है वर्टिकल प्लेन. The rod is released from the horizontal position as shown in the figure. Calculate the shear stress developed at the center of the rod immediately after it is released. रॉड का सेंटर यहाँ पे जो shear stress फॉर्म होगा वो हमें फाइंड करना है. shear stress का फॉर्मूला क्या होगा? Internal force which is parallel to the area upon cross-sectional area. Area भी हमें दिया हुआ है. The cross-sectional area of the rod is A, and for the calculation of moment of inertia, you can treat it to be very thin. So basically हमें ये internal force निकालना होगा जो area के parallel होगा, और internal force को पिक्चर में लाने के लिए हम लोग रॉड को 2 पार्ट्स में कट करेंगे. और रॉड के राइट वाले पार्ट का अगर हम लोग FBD बनाते, लेफ्ट वाले पार्ट का क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि लेफ्ट वाले पार्ट पे हिंज फोर्स भी लग रहा होगा विच इज अननोन. तो रॉड के राइट वाले पार्ट के एफबीडी में क्या क्या फोर्स लग रहे होंगे? राइट वाले पार्ट का मास m/2 होगा, सो इसके सेंटर पे नीचे mg/2 फोर्स लग रहा होगा. और लेफ्ट वाला पार्ट राइट वाले पार्ट पे वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर या नीचे फोर्स लगा सकते. तो लेट्स से अगर वो ऊपर फोर्स लगा रहा है F पैरेलल, तो हमें ये वाला फोर्स निकालना है किसी तरह. तो उसके लिए हमें रॉड का जो राइट वाला पार्ट है उसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालना होगा. और ए को हम निकालने के लिए हम लोग पूरे रॉड का टॉर्क इक्वेशन लिख सकते हैं. पूरे रॉड का टॉर्क इक्वेशन अगर हम लोग हिंज पॉइंट के अबाउट लिखते, इस पूरे रॉड पे क्या फोर्स लग रहा है? सेंटर पे कैपिटल mg, और हिंज पे कुछ तो हिंज फोर्स ऊपर लग रहा होगा विच इज अननोन. बट टॉर्क अबाउट हिंज में ये वाला फोर्स पिक्चर में नहीं आएगा, और mg का जो टॉर्क है दैट विल बी mg into l/2, एंड दिस विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द हिंज व्हिच इज ml²/3 टाइम्स अल्फा. सो m कैंसिल हो गया और एक l भी कैंसिल हो जाएगा, एंड अल्फा की वैल्यू 3g/2l ये आ जाएगी. दैट मीन्स रॉड को रिलीज करने के जस्ट बाद हिंज पॉइंट के अबाउट रॉड का जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो हमने कैलकुलेट कर लिया. और इस अल्फा से जो राइट वाला पार्ट था उसके सेंटर ऑफ मास का हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते. राइट वाले पार्ट का जो सेंटर है वो हिंज पॉइंट से 3l/4 डिस्टेंस पे होगा. तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो हम लोग अल्फा टाइम्स 3l/4 बोल सकते, राइट? एंड अल्फा इज 3g/2l, सो दिस विल बी 3g/2l टाइम्स 3l/4. तो यहाँ से L कैंसिल हो गया और ये 9g/8 आ गया.
दैट मीन्स इसका एक्सेलरेशन जी से भी ज्यादा है। तो अगर एक्सेलरेशन जी से भी ज्यादा है, इसका मतलब जो इंटरनल फोर्स लग रहा होगा उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा। और फोर्स इक्वेशन क्या बनेगा? F पैरेलल प्लस mg/2 इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। राइट वाले पार्ट का मास m/2 इनटू राइट वाले पार्ट का एक्सेलरेशन 9g/8। तो यहाँ से F पैरेलल की वैल्यू हमें मिल जाएगी, m/2 कॉमन ले लो, g भी कॉमन ले लो, तो अंदर 9/8 माइनस 1 विच इज 1/8 ये बच जाएगा। सो दिस विल बी mg/16। एंड वंस वी गॉट F पैरेलल, shear stress की वैल्यू F पैरेलल अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट मींस mg/16a। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। A rigid cylindrical container has inner radius r, a cork having radius r plus delta r and length l is to be fitted so as to close the cylinder. So यहाँ पे ये सिलेंडर दिया हुआ है और ये कॉर्क दिया हुआ है। कॉर्क का रेडियस डेल्टा आर अमाउंट से ज्यादा है। यूनिफॉर्म प्रेशर इज नीडेड टू बी अप्लाइड ऑन द कर्व्ड सिलिंड्रिकल सरफेस ऑफ द कॉर्क। तो कॉर्क को सिलेंडर के अंदर इंसर्ट करने के लिए इसको कंप्रेस करना पड़ेगा, प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा फ्रॉम ऑल द साइड्स। पॉइजन्स रेशियो ऑफ द कॉर्क इज ऑलमोस्ट जीरो एंड इट्स बल्स मॉड्यूलस इज बी। तो हमें फाइंड करना है कि इस कॉर्क को सिलेंडर के अंदर इंसर्ट करने के लिए कितना एक्सेस प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, डेल्टा पी। सो डेल्टा पी, बल्स मॉड्यूलस, वॉल्यूम स्ट्रेन, इन सब में क्या रिलेशन होगा? डेल्टा पी विच इज वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी विच इज वॉल्यूम स्ट्रेन। इसको हम लोग बल्स मॉड्यूलस के इक्वल लिखते हैं। दैट मीन्स डेल्टा पी शुड बी इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन वी टाइम्स बी। यहाँ पे डेल्टा वी को हम लोग डिक्रीमेंट ऑफ वॉल्यूम मान रहे, तो इसीलिए माइनस साइन लिखने की जरूरत नहीं है अलग से, राइट। सो कॉर्क को अगर सिलेंडर के अंदर इंसर्ट करना है तो उसको कितने से कंप्रेस करना पड़ेगा? उसको डेल्टा आर अमाउंट से कंप्रेस करना पड़ेगा। डेल्टा आर मतलब ये वाला जो वॉल्यूम होगा, अगर मान लो ये सिलेंडर है तो जो डेल्टा आर का थिकनेस का जो पार्ट होगा उसका वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। एंड डेल्टा आर थिकनेस वाले पार्ट का जो वॉल्यूम है उसको अपन कर्व्ड सरफेस एरिया टाइम्स थिकनेस लिख सकते हैं। दैट मींस डेल्टा वी विल बी इक्वल्स टू 2 पाई आर एल इनटू डेल्टा आर, कर्व्ड सरफेस एरिया इनटू थिकनेस। ये वॉल्यूम से एक तरीके से हम लोग कॉर्क को कंप्रेस कर रहे हैं। सो दिस विल बी द डिक्रीमेंट ऑफ वॉल्यूम एंड ओरिजिनल वॉल्यूम that was equals to pi r square. यहाँ पे r and r plus delta l, they are approximately same. तो यहाँ पे वॉल्यूम को हम लोग pi r square times l लिख सकते हैं। This is the original volume. So delta v upon v कितना हो जाएगा? 2 pi r l times delta r upon pi r square l. So l कैंसिल हो रहा है, pi भी कैंसिल हो रहा है और एक r भी कैंसिल हो जाएगा। सो दिस विल बी 2 डेल्टा r अपॉन r। तो यहां से डेल्टा p की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2b डेल्टा r अपॉन r, राइट। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर a पार्ट। अभी देखो b पार्ट में क्या पूछा है? आफ्टर द कॉर्क इज इंसर्टेड, हाउ मच फोर्स विल बी नीडेड टू पुल इट आउट ऑफ द सिलेंडर? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द कंटेनर एंड द कॉर्क इज म्यू। तो कॉर्क को इंसर्ट करने के बाद उसमें फ्रिक्शन भी लग रहा होगा, तो उसको वापस पुल आउट करने के लिए हमें फोर्स निकालना, राइट। सो देखो इसके लिए कॉर्क का एफबीडी बना देते। वंस द कॉर्क इज इंसर्टेड इनसाइड द सिलेंडर, इस कॉर्क पे डेल्टा पी प्रेशर लग रहा है। तो इसका अगर हम लोग ये वाला एलिमेंट लेते, ये वाला एलिमेंट इमेजिन करो 3D में, इसका ये कर्व लेंथ x मान लो, तो इस एलिमेंट का जो एरिया होगा वो कितना होगा? x इंटू ये लेंथ, ये वाला लेंथ l दिया हुआ है, सो xl, ये उसका एरिया होगा एलिमेंट का। और
डेल्टा पी प्रेशर की वजह से जो एक्सेस प्रेशर है उसकी वजह से जो नॉर्मल फोर्स आएगा, नॉर्मल फोर्स विल बी इक्वल्स टू डेल्टा पी प्रेशर टाइम्स एरिया ऑफ दिस एलिमेंट एक्सेल, राइट। और इस नॉर्मल की वजह से जो उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जो लग सकता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू टाइम्स नॉर्मल, मतलब म्यू टाइम्स डेल्टा पी इनटू एक्सेल। और पूरे एलिमेंट पे जो नेट फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे। सो इंटीग्रेशन में म्यू डेल्टा पी टाइम्स एल ये बाहर आ जाएगा, एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स विल गिव अस द टोटल लेंथ ऑफ द सर्कमफ्रेंस व्हिच इज 2 पाई आर। सो ये फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, एंड कॉर्क को बाहर निकालने के लिए इसी फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करना पड़ेगा, राइट। सो एक्सटर्नल फोर्स व्हिच नीड्स टू बी अप्लाइड will be equals to 2 pi mu into LR, और डेल्टा पी की वैल्यू ए पार्ट से सब्स्टिट्यूट कर दो। डेल्टा पी वाज 2b डेल्टा r अपॉन r, सो r कैंसिल हो जाएगा एंड फाइनल रिजल्ट विल बी 4 pi mu into L into b into delta r, okay. Question 3. Assume that the least load which would break a thread when simply suspended from it is capital M, and this load produces a strain of 1% at the moment of breaking. Also, assume that Hooke's law applies to the thread right up to the breaking point. So देखो जो पहला स्टेटमेंट है उसका क्या मतलब है, अगर कोई भी थ्रेड गिवन है, इस थ्रेड से अगर हम लोग कैपिटल एम मास अटैच कर तो ऐसा करने पर ये थ्रेड जस्ट ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने के टाइम पे इसके अंदर जो स्ट्रेन होगा दैट इज 1%, राइट। सो दैट मीन्स ब्रेकिंग स्ट्रेन, इसको हम लोग 1% मतलब 0.01 बोल सकते, राइट। हुक्स लॉ को भी हम लोग फॉलो करता हुआ मान सकते। सो इस थ्रेड को अगर हम लोग इक्विवेलेंट स्प्रिंग की तरह अगर ट्रीट करते of spring constant K, that means at the time of breaking इसके अंदर जो डिफॉर्मेशन होगा डेल्टा L वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। K टाइम्स डेल्टा L ये mg को बैलेंस कर रहा होगा ब्रेकिंग के टाइम पे, तो ये पहला इक्वेशन हमें मिल रहा है फर्स्ट कंडीशन से। अभी देखो सेकेंड कंडीशन में क्या दिया हुआ है, अ लोड ऑफ मास स्मॉल m इज सस्पेंडेड फ्रॉम दिस थ्रेड, और थ्रेड का लेंथ भी दिया हुआ है L। थ्रेड का लेंथ L मतलब जो करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन होगा उसको हम लोग डेल्टा L अपॉन L भी लिख सकते हैं। एंड सेकेंड केस में इसी थ्रेड पे से हम लोग स्मॉल m मास को हैंग कर रहे, सस्पेंड कर रहे, एंड दिस स्मॉल m मास इज रेज्ड टू अ पर्टिकुलर हाइट, इसको किसी हाइट पे ले जा रहे एंड इट इज रिलीज्ड फ्रॉम दैट हाइट। फाइंड द लीस्ट हाइट to which this small m load should be raised so that the wire will break when the thread is allowed to fall. Okay. So हमें ये minimum h की वैल्यू फाइंड करनी है such that जब ये मास m वापस नीचे गिरेगा तो ये वायर ब्रेक हो जाना चाहिए। ओके, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। हमें पता है कि ये वायर को ब्रेक करवाने के लिए इसके अंदर एक्सटेंशन डेल्टा एल का होना चाहिए। डेल्टा एल यहाँ से निकल जाएगा, ये जो डेल्टा एल होगा उसको अपन एच के कंपैरिजन में वेरी स्मॉल मान सकते, राइट। इलास्टिक वायर्स में जो भी एक्सटेंशंस होते वो बाकी सारे डायमेंशंस के कंपैरिजन में बहुत छोटे मान सकते हैं अपन, राइट। सो जब ये मास नीचे गिरेगा इसका जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आएगा दैट विल बी mgh। एक्चुअल में mgh प्लस डेल्टा एल होना चाहिए, बट डेल्टा एल इज नेग्लिजिबल। सो जो भी लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा उसको हम लोग स्प्रिंग एनर्जी में कन्वर्ट होता हुआ मान सकते हैं, विच विल बी हाफ के डेल्टा एल का स्क्वायर। तो यहाँ से h की वैल्यू k डेल्टा एल का स्क्वायर बाय 2 स्मॉल mg ये आ जाएगी। k टाइम्स डेल्टा एल, डेल्टा एल का स्क्वायर को ब्रेक कर दो, k टाइम्स डेल्टा एल इनटू डेल्टा एल अपॉन 2 स्मॉल mg। सो k टाइम्स डेल्टा एल को हम लोग कैपिटल mg लिख सकते हैं, और डेल्टा एल की वैल्यू यहां से 0.01 टाइम्स एल के इक्वल आ जाएगी।
अपॉन 2 times small mg. So g कैंसिल हो रहा है एंड फाइनली h की वैल्यू 0.01 L into capital M upon 2m. ये इसके इक्वल आ रहा है. Okay. So guys, this completes our discussion of all the questions from this set. Keep up the hard work by practicing many such questions from the other sets as well. Also, please do subscribe to the channel Calibrate Physics. You all can also like, share and comment below and hit on the bell icon to get notifications of many such videos in the future. Thank you all for watching this video and take very good care of yourselves.